నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుడైన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. Thank you for leading us to your presence. We thank you, Mother, for preserving, guiding, and leading your servant, your son, Francis. Today we are grateful to you, Mother, because you are with him and with us. You are leading us always to your Son, Jesus Christ, our Savior. Especially we pray for our brother, priest Francis, who is celebrating his silver jubilee today. Be with him, Mother. Touch him. Bless him. Give him all that he needs in his priestly life to lead a faithful servant, a faithful priest to your Son, Jesus. Bless all our family members, mothers, sisters, brothers, and all. Also bless all those who have helped him to lead his life to this day without any failure, any fault. Now we beg you, Mother, lead us to your Son to celebrate the most precious Eucharistic celebration. Be with us. Help us to cherish this beautiful moment with your Son, with all our brothers and sisters.
as a community of faithful. Bless us, lead us again. We ask, we beg you, Mother, bless us. Amen. We start the procession. We go.
चरणों में तेरे शीश नवाने आया हूँ, चरणों में तेरे शीश नवाने आया हूँ, कृतज्ञता का वंदन चढ़ाने द्वार तिहारे आया हूँ, चरणों में तेरे शीश नवाने आया हूँ, चरणों में तेरे शीश नवाने आया हूँ। सौंपा तूने तेरी प्रजा को, साथ उनके आया हूँ, सौंपा तूने तेरी प्रजा को, साथ उनके आया हूँ। भक्ति भाव से तन्मय होकर, भक्ति भाव से तन्मय होकर द्वार तिहारे आया हूँ, चरणों में तेरे शीश नवाने आया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृपया बैठ जाइए। To celebrate life with Father G. Francis. Today, we have gathered here to celebrate the gift of life our dear Reverend Father G. Francis enjoys. Blessings of God have come down upon him mightily, and we are blessed to have Father as our guide, friend, and well-wisher. We thank God for this beloved person whom we call Father and Guide. Ideal priest. A promise-filled priest makes the faithful people of God realize that they can do or achieve anything if they work meticulously and with faith. Contemplative. A reflective priest of God takes time to evaluate his lifestyle and adjust his life accordingly. Innovative. A creative person deliberately sparks interest, curiosity, and real-world application of knowledge through collaborating with fellow workers and others. Efficacious. An effective personality has skills of communication, listening, collaboration, adaptability, empathy, and patience. Assiduous. A diligent person sows the ground with care and diligence and acquires a great stock of religious merit. Spiritual mentor. A great spiritual instructor has self-realization, balance of self-esteem, and is completely grounded in truth. This person meditates before preaching. Loving. A loving person spreads love and is on a mission of betterment and helps people evolve. A loving individual in the best friend, a philosopher and guide any of us can ever have. Smart people are blessed. Thank you, dear Father, for showing us our true potential and providing the motivation we need. God's blessings
be upon you, dear Father Francis, for being an inseparable part of our church and for making this place a better place to live in. We want and wish to show our appreciation to you, dear Father, on this your silver jubilee. Thank you for your contribution in the field of knowledge and wisdom. We, your loved ones, truly value your loving and caring nature, which inspires us to be good like you. With great love and fondness to you, we, your affectionate people, say, Happy Silver Jubilee. May the Almighty give you the fullness of grace and make your life and this event beautiful beyond compare. We are happy to join you in this Eucharistic celebration. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इन 25 वर्षों के लिए जो बहुमूल्य रहे और ईश्वर के योजना के अंतर्गत वो सब कार्य जो प्रभु ने मुझे सौंपा, प्रभु ने जो अवसर दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद का ये बलिदान चढ़ाने के लिए मैं आप सभी मेरे अपनों के साथ में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। हम सभी पापी हैं, आइए हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, प्रभु से क्षमा याचना करें ताकि हम प्रभु के सामने इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लायक बन जाएं। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते, तेरी प्रशंसा करते। तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सपूत। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत के पाप तू हरने वाले, हम पे कर दे तू दया। सुन अब विनय हमारी, पावन रख तू हमें सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाएं शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाएं शोभित तू, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाएं तू प्रभु पावन, विराज पावन आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। आमीन हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, तूने मुझे मेरे पुण्य के बल पर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण क्रिस्त की शाश्वत पुरोहिताय में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसी कृपा कर कि मैं सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचारक बना रहूं और भले सेवक की तरह तेरे संस्कारों को संपन्न कर सकूं। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होंठ खोल दे ताकि आप प्रभु का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 से 13 तक। दाऊद का धन्यवाद। तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों में धन्यवाद दिया। प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु, तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु, राज्य अधिकार तेरा है।
तू सब शासकों से महान है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं। ये जीवन है तेरा प्रभुवर, तुझे समर्पित हो जाऊं। अर्पित होवे सब कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं। अर्पित होवे सब कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं। ये जीवन है तेरा प्रभुवर, तुझे समर्पित हो जाऊं। अर्पित होवे सब कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं। कृतज्ञता का ये अर्पण तेरे चरणों में लाया। कृतज्ञता का ये अर्पण तेरे चरणों में लाया। अनगिनत वरदानों से तूने मुझे है सजाया। प्रेमी पिता श्री चरणों में तेरे समर्पित हो जाऊं। अर्पित होवे सब कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं। ये जीवन है तेरा प्रभुवर, तुझे समर्पित हो जाऊं। अर्पित होवे सब कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं। ये जीवन है तेरा प्रभुवर, तुझे समर्पित हो जाऊं। अर्पित होवे सब कुछ मेरा तेरा ही कहलाऊं।
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। संतों और यीशु मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाइए। Alleluia, Alleluia, Ale, Alleluia, 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 Ale, Alleluia। चुन कर तूने प्रभु प्रेषित मुझको किया, धन्यवाद तुझे प्रभु देने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हाले, हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र शिशु समाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सच मरियम बोले उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुनागन कीती है। मेरी मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन कहेगी,
कि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धाल भक्ति पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसके आपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसके घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उनकी शक्तिशालियों को उनके आसनों ने गिरा दिया। और दिनों ने महान बना दिया है, उसको दरिद्रों के संपत्ति किया और धनियों को खाली हाथ ठहरा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति आपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसके हमारे पूर्वज के प्रति आपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने दास इस्राएल की सुधि ली है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय बिशप पायस थॉमस डिसूजा, बिशप इग्नेशियस मेनेसिस, फादर जी फ्रांसिस, पुरोहितगण, सिस्टरगण और सभी विश्वासीगण, सबसे पहले मैं फादर को उनके जुबली के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित, इतने पुरोहित लोग हैं, फिर भी फादर ने मुझसे कहा आज के दिन दो शब्द कहने के लिए। ये इसलिए कि मैंने इनको पिछले 24 साल से जानता हूँ। जब मैं सेमिनरी में आया था पहले साल, वो हमारे सेमिनरी आता था हमें हिंदी सिखाने के लिए। उसके बाद कुछ साल के बाद जब मैं रीजेंसी के लिए आया तो मैंने उनके साथ पूरे 1 साल अपना जीवन बिताया और वहां से लेकर आज तक वो हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे मदद किया है। इसलिए मैं आभारी हूं। आज के दिन जुबली के समय, जुबली मनाते समय हम अक्सर उस व्यक्ति के बारे में कुछ तो हम कहते हैं, वो व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति ने ईश्वर के जगह पर खड़े होकर हम मनुष्यों के लिए क्या किया है, उस स्वर्गराज के लिए क्या किया है। हम सबों का जो अनुभव है अलग अलग हो सकता है। मेरा जो अनुभव है फादर जी फ्रांसिस के साथ वो अलग है, शायद आप लोगों का जो अनुभव है वो अलग हो सकता है। फिर भी जो मैंने देखा है, मैंने जो अनुभव किया है एक साथ उनके साथ रहते हुए, वो कुछ अलग है। बड़ी उत्सुकता से वो अपने कार्यों को करता था। ये शायद 2006 की बात है, जब वो परोतपुरा में था, सेंट जोसेफ चर्च और स्कूल में काफी सारे समस्या थे उनके साथ। मैंने भी देखा है पूरा 1 साल, फिर भी वो कभी भी उन समस्याओं से भागा नहीं, वो समस्याओं का सामना किया, हिम्मत के साथ लोगों के सामना करते थे। जो उनको बोलना था वो जरूर बोलते थे, भय उनके साथ नहीं था।
निडर होकर ईश्वर के सुसमाचार ना केवल अपनी वाणी से लेकिन प्रगट रूप से जीने के लिए वे तैयार हुए। इसलिए शायद उन्होंने जो थीम चुना है, ग्लोरी टू गॉड, ईश्वर को महिमा, ईश्वर की महिमा, सही है, उचित है। क्योंकि वो जो भी चीज उन्होंने किया है, जो वो दावा करता है कि मैंने ये चीज किया है, वो केवल वो दावा नहीं करता है, लेकिन उसकी महिमा, उसकी श्रेय वो ईश्वर को देता है। पवित्र ग्रंथ में सिल्वर जुबली के बारे में नहीं लिखा गया है, जयंती वर्ष के बारे में लिखा गया है। जयंती वर्ष हर 6 साल के बाद एक महाविश्राम साल आता है, और ऐसे 7 साल या 6 साल के बाद एक महाविश्राम साल आता है। ऐसे 39 साल के बाद जयंती वर्ष होता है। और जयंती वर्ष में जैसे लेवी के ग्रंथ में लिखा गया, उस वक्त सब अपने कुटुंब में लौटता है, वापस जाता है, और अगर उनके पास कोई दास है उसे मुक्त करता है और पवित्रता की ओर पुनः या वापस आता है। सिल्वर जुबली के बारे में नहीं, लेकिन जयंती वर्ष के बारे में। लेकिन हम सबों के लिए सिल्वर जुबली एक अनुभव है, वापस आने का, अपने कुटुंब में यानी अपने बुलाहट में एक बार फिर मुड़कर देखने का अवसर है। शायद अंधकार की शक्तियों के कारण व्यक्तिगत जीवन में जो भी अंधकार की शक्ति है, जो जिसके कारण हम उन अंधकार की शक्तियों के दास बन चुके हैं, उससे छुटकारा पाने का समय है और उसके द्वारा पवित्रता के लिए पुनः वापस आने का समय है, जयंती वर्ष या जुबली वर्ष। मैं आशा करता हूं फादर जी फ्रांसिस के लिए भी यही वर्ष वही हो, बुलाहट में एक बार फिर उस बुलाहट पर मनन चिंतन करने का समय, अपने उस अगर उनमें कुछ कमियां हैं उसे दूर करने के समय, और एक बार फिर उस पवित्रता को अपनाने के समय। जैसे आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना कैसे मां मरियम ने अपने बारे में कहती है, जब उन्हें ऐसे कृपा मिली उस ईश्वर के मां बनने के लिए, उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो ईश्वर की स्तुति करती है। शायद फादर जी फ्रांसिस के लिए भी शायद इस वक्त जब इतने सारे लोग थे फिर भी ईश्वर ने उन्हें चुना उस पुरोहित बनने के लिए, शायद उनको भी ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। ना केवल उनको, लेकिन यहाँ उपस्थित हर एक इंसान को, हर एक विश्वासी को उस ईश्वर की महिमा का बखान करने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उन पुरोहितों द्वारा हम अनुभव करते हैं। यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में वचन में ऐसे लिखा है, यह वचन कहता है, मैं अपने हृदय के अनुसार, मैं अपने हृदय के अनुकूल तुम्हें एक चरवाहा प्रदान करूंगा। और यही यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, मां के हृदय में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया और मैंने सभी राष्ट्रों के लिए तुम्हें एक नबी नियुक्त किया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह न केवल उनकी जुबली है बल्कि हमारे भी जुबली है, क्योंकि ईश्वर का जो वचन है, ईश्वर का जो शब्द है 25 साल से हमारे बीच में घूमता रहा। हमने उनको देखा, उनको अनुभव किया, इसलिए इन्होंने जो भी किया हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन में, समाज के लिए, स्कूल के लिए या धर्म प्रांत के लिए, केवल उनके लिए नहीं था, लेकिन उस ईश्वर की महिमा को प्रकट रूप से हम सबों के सामने दर्शाने के लिए किए। इसलिए ना केवल उनको ईश्वर की महिमा देने की जरूरत है, लेकिन हमें से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की महिमा करने की जरूरत है। पुरोहित कौन होता है? इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, वे पृथ्वी में रहते समय पुकार कर आंसू बहाते हुए ईश्वर के सामने अनुनय विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा। जो ईश्वर उन्हें बचा सकता था फिर भी वो प्रार्थना करने लगा पूरे संसार के लिए। उस वक्त प्रभु मसीह ने आने वाले उस विपत्ति के बारे में सोचकर वो आंसू बहाता है। इब्रानी के पत्र में लिखा है,
एक मध्यस्थ के रूप में बनकर, ये मध्यस्थ बनकर वो पूरे संसार के लिए अपने जीवन को अर्पित करने के लिए वो आंसू बहाते हुए जीते हैं। एक पुरोहित का जीवन वही है, समाज में हमारे व्यक्ति के जीवन में एक मध्यस्थ बनना। इस मध्यस्थ बनने के लिए उन्हें कई बार आंसू बहाना पड़ता है। आप लोगों के सामने नहीं या कई वेदी पर नहीं, लेकिन अपने कमरे में, बंद कमरे में, अपने हृदय में, उस चापल में बैठकर अकेले एक पुरोहित जब आंसू बहाते हैं तो जरूर उन्हें अभिनय करता है उस ईश्वर के सामने मध्यस्थ बनते हुए, सब कुछ सहते हुए। उस मसीह भी उस क्रूस पर ना जमीन में ना आसमान में, बीचों बीच उस क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु मध्यस्थ बनकर लहू बहाते हुए पूरे संसार के लिए विनती करता है। यही है ये जब पुरोहित जब अपना जीवन जीते हैं। शायद 25 साल हमें नहीं पता होगा कि फादर ने कितने बार आंसू बहाया होगा, या हमें से एक पुरोहित जो है इन लोगों ने कितना आंसू बहाया होगा हमारे कारण, हमारे पापों के कारण। हमें नहीं पता उनमें कितने कितने दोष, या कई बार हमें इन्हें झूठे दोष लगाते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं उन्हें गलत साबित करने के लिए, कई बार हम उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। सब कुछ सहने के लिए आंसू बहाता है, ना कोई शिकायत है, ना कोई दर्द हम जानते हैं। क्रिस में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें ईश्वर को महिमा देने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे जगह पर हमारे लिए आंसू बहाता है, हमारे लिए रोता है, हमारे लिए दुख सहता है। इब्रानियों के पद, इब्रानियों ने मलाकी के ग्रंथ में आप लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, एक याजक का मुख ईश्वर का सच्चाई का गढ़ है, या एक याजक के मुंह से ईश्वर का सच्चाई का, या मुख ईश्वर का सच्चाई का गढ़ है। वो ईश्वर का वचन का संदेश वाहक है। जो भी पुरोहित बुलाहट को अपनाते हुए जो भी पुरोहित बन चुके हैं हमारे बीच में, वो सच्चाई का गढ़ है। उनका मुंह, उनका होठ बुलाए गए हैं उस ईश्वर की सच्चाई को इस संसार में सुनाने के लिए, उसे जीने के लिए। हम जानते हैं सच्चाई को प्रकट रूप से जीना कितना मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं सच्चाई को दबाने के लिए, सच्चाई को अपने से दूर रखने के लिए। जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास अधिकार है, सच्चाई को दबा देते हैं। ऐसे एक संसार में सच्चाई के साथ जीना कितना मुश्किल है, कितने कठिन होगा उस क्रिस को अपने में धारण करते हुए समाज में जीना। पुरोहितगण जानते हैं जब सच्चाई को जीने के लिए कोशिश करते हैं उसे कितना कुछ सहना पड़ता है। जब प्रभु मसीह ने कहा कि मैं उस स्वर्ग से उतरी रोटी हूं, जब उन्होंने कहा मैं ही वही राजा हूं, तब लोगों ने उनको माना नहीं। ये मान के भी इसने सबके सामने इस निंदा की है, तैयार नहीं हुए सच्चाई को मानने के लिए। शायद फादर भी अपने जीवन द्वारा कई बार उस सच्चाई को प्रकट रूप से जीने के लिए कोशिश किए होंगे हमारे बीच में, लेकिन हमने नहीं पहचाना, फिर भी वो जीते रहे। इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। ईश्वर की महिमा को, या ईश्वर को महिमा देने की जरूरत है, क्योंकि वही लोग जो हमारे कारण रोते हैं, हमारे कारण आंसू बहाते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं सच्चाई के साथ जीने के लिए। आइए ये जुबली मनाते समय हम विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर की महिमा इस संसार में प्रकट रूप से जीने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम उनके साथ रह सके और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ उस ईश्वर की अपने जीवन द्वारा महिमा प्रकट कर सके। आमीन। Us to be yours before the foundation of the world. We, your children, come to you in confidence. Look with favor upon us and grant us our humble requests through your Son, Jesus Christ.
Let your response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray for the Church, for our Holy Father Pope Francis, our Bishop Pius, and the bishops, priests, religious, and the laity, that we may journey together on the path of synodality and be docile to the Holy Spirit, to become a prophetic sign for the whole human race. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord Jesus, on this day with immense joy and gratitude, we place Father G. Francis at your feet. Lord, we thank you profoundly for the 25 years of grace-filled service, life and blessings. Father's outstanding qualities of simplicity, dedication and ready service have enabled him to give his wholehearted service to the responsibility entrusted to him. Wherever Father was sent, Father has lived up to trust and confidence that was placed in him by the diocese over the years. Today we have Father Francis as the principal of this school. Bless Father with showers of blessings. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Gracious Lord, on this grace-filled day, we pray for his mother, family members, friends, and relatives who are a source of inspiration for Father. On this special occasion, let your Spirit abide with them and bless each one of them. Fill them with your love, peace, and joy. Thus, they may give glory to your name. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Powerful and ever-living God, on this memorable day, we bring before you all fathers, formators, mentors, teachers, benefactors, and well-wishers. Lord, bless and grant them good health of body and mind, that they may continue to experience your richest blessings in their lives. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord of the living and dead, we pray for the Father, beloved God, G. Joseph, priest and religious. We especially remember Father Savio Gonzalez, his companion. Loving Lord, forgive all their sins and shortcomings that they have committed during their lifetime. Remember their good deeds and give them eternal bliss in your kingdom. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, today we pray especially for Father Rajesh Simon of Allahabad Diocese and Father Anand Prakash of Varanasi Diocese. These are companions of Father G. Francis who are present here today to celebrate the silver jubilee of their ordination today. Bless them, Lord, with good health and the fullness of your Holy Spirit. May they be a true reflection of your love and compassion to all. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God, our loving Father, our joy is enhanced today as we join in celebrating the silver jubilee of religious profession of Sister Pearl MSA of the same parish of Father G. Francis. It is also the golden jubilee of Sister Antonita PSA, the god sister of Father G. Francis. Bless both our sisters with your choicest blessings of better health in the days to come and draw them ever close to you. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God our Father, in your goodness, accept the prayers of your children. Send your blessings upon your servant, Father G. Francis. May your grace enable him to live with a greater dedication and love. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. जीवन ये अरबन दाक रोटी संग
स्वीकार करो भगवन, जीवन ये अर्पण। रूप है पावन शरीर तेरा ये बलिदान। रोटी रूप है पावन शरीर तेरा ये बलिदान। स्वीकार करो भगवन, जीवन ये अर्पण। तन मन धन और ये जीवन तेरे ही है दान। तन मन धन और ये जीवन तेरे ही है दान। करो समर्पित सब कुछ स्वीकारो है नाम, ताक रोटी संग। स्वीकार करो भगवन, जीवन ये अर्पण। रोटी रूप है पावन शरीर तेरा ये बलिदान। रोटी रूप है पावन शरीर तेरा ये बलिदान। दाख रस है पावन लहू, दाख रस है पावन लहू। तूने दिया दान, ताक रोटी संग। स्वीकार करो भगवन, जीवन ये अर्पण। ताक रोटी संग। स्वीकार करो भगवन, जीवन ये अर्पण। जीवन ये अर्पण। जीवन ये अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। यह तेरे प्रति हमारी सेवा में वृद्धि करे। जो दायित्व तूने हम अयोग्य सेवकों को सौंपा है, तेरी कृपा से हम उसे पूरा कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय
प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा है प्यार। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य बन हर्षाते। महिमागान हो प्रभु का, गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। यूकरिस्ट प्रार्थना नंबर 2। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नव जीवन प्रदान किया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक जोसेफ की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आरती, 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 आरती करते हैं हम, पुष्पारती करते हैं हम, पुष्पारती करते हैं हम, आरती करते हैं हम, धूपारती करते हैं हम, धूपारती करते हैं हम, आरती करते हैं हम, दीपारती करते हैं हम, दीपारती करते हैं हम, आरती, आरती,
तेरा नाम हो, वास तेरा स्वर्ग धाम का, राज तेरा अब ऊपर हो। पिता हमारे पावन तेरा नाम हो, इच्छा तेरी स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हर दिन का भोजन हमारा सदा हमें प्रदान करो। पिता हमारे पावन तेरा नाम हो, माफ हमारे कर तू गुनाह, कर दे माफ अपराधियों को। दान परीक्षा में न हमें अब बुराई से बचा हमको। पिता हमारे पावन तेरा नाम हो, पिता हमारे पावन तेरा नाम हो, वास तेरा स्वर्ग धाम का, राज तेरा अब भूपर हो। पिता हमारे पावन तेरा नाम हो, पिता हमारे पावन तेरा नाम हो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना में सुरक्षित रहें और जिन प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है सदा सर्वदा। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो इस भोज में आमंत्रित हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये परम प्रसाद सिर्फ उन्हीं कैथलिक लोगों के लिए है जिन्हें विधिवत रूप से यह संस्कार ग्रहण किया है। वे ही आगे आएं। आप लोग अपने स्थान पर जो 6 ब्लॉक हैं आप वहीं पर रहें
पुरोहित वहीं पर आकर के परम प्रसाद देंगे। अन्य धर्मावली आप लोग अपने स्थान पर ही विराज कर गाने में ईश्वर की महिमा करें। पालिया मैंने तुझे प्रभु रोटी रूप में बदल दूं मेरा जीवन करूं मैं तेरे काम। पालिया मैंने तुझे प्रभु रोटी रूप में बदल दूं मेरा जीवन करूं मैं तेरे बना। रोटी राक्षस रूप में अंधकार मिटा। प्रभु यीशु दिल में रक्त शरीर का आत्मिक भोजन करते ग्रहण अब हम सब प्रभु जन। रक्त शरीर का आत्मिक भोजन करते ग्रहण अब प्रभु यीशु दिल में आकर वास बना। रोटी राक्षस रूप में अंधकार मिटा। प्रभु यीशु दिल में हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहिताभिषेक की वर्षगांठ पर विश्वास का यह संस्कार सानंद अर्पित किया है। मैं इस बलि का प्रतिस्वरूप बन जाऊं जिसे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
आप सबों की तरफ से और अपने धर्म प्रांत अजमेर की ओर से फादर जी फ्रांसिस को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ ही उनके क्लासमेट जो 2 आए हैं, आनंद प्रकाश और मिस्टर राजेश, फादर राजेश, उनको भी मैं बधाइयाँ देता हूँ। इलाहाबाद से आए हैं फादर राजेश, फादर आनंद प्रकाश बनारस से आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ आप सबों की ओर से। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और आशीष आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। No duty is more urgent than that of honoring our special guests. So may I request Father Francis's brother-in-law, Mr. Henry, to felicitate our Honorable Bishop, Right Reverend Pius Thomas D'Souza. Now I request Father's brother-in-law, Mr. Peter, to greet our Honorable Bishop, Right Reverend Ignatius Menezes. I would now like to invite Father's brother, Mr. Anthony, to honor Reverend Father G. Anthony. Father is the cousin brother of Reverend Father G. Francis, and he has come from Germany to attend today's function. May I now invite Father's brother, Mr. Thomas, to felicitate his cousin, Reverend Father G. Thomas, who has come all the way from the United States of America. I would now like to request Father's sister, Mrs. Lourdes Mary, to honor Sister Antonetta from PSA. She is not only Father's god sister, but is celebrating her Golden Jubilee also this year. May I now invite Father's niece-in-law, Mrs. Sheba, to greet Sister Pearl from MSA. Sister is from Bhatta Parish and celebrating her Silver Jubilee this year. Now I would request Father's nephew, Mr. Vishal, to greet Reverend Father Anand. Father Anand is Father Francis's batchmate from Varanasi Diocese. I would now like to invite Mr. Shekhar to honor Reverend Father Rajesh Simon, who is Father's batchmate from Allahabad Diocese.
Now it's time to felicitate the celebrant of the day. So I request our beloved Reverend Father G. Francis to step down the stage and accept the blessings from his mother and brother, Mr. G. Jonas. आभार शुक्रिया धन्यवाद करबद्ध हो तेरा धन्यवाद. I invite Father's family members to join the group.